مرتضی خان یہ لڑکی کون ہے؟ جب مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان نے مرتضی خان کو ایک لڑکی کے ساتھ خان بلا میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سخت غصے سے آگے بڑھے اور اس سے پوچھنے لگے، مجتبیٰ بھائی، میری بیوی ہے یہ۔ مرتضی خان اپنے ہاتھ کے نیچے دبے اس لڑکی کے ہاتھ کو دباتے سنجیدگی سے بولے، سردار مرتضی خان، ابھی تمہاری بیوی کو مرے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا اور تم نے دوسری شادی کر لی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو ہمارے گھر تک لانے کی؟ ہاں؟ ارتضی خان نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر غصے سے گھورتے ہوئے بری طرح جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں کہا، بھائی، میں صنوبر سے بے حد محبت کرتا ہوں اور اس وقت سے کرتا آ رہا ہوں جب میری شادی زلیخا سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تب سے میں خاموشی سے صنوبر سے یک طرفہ محبت کرتا آ رہا ہوں۔ اس سے جب میں نے اظہار کرنے کا سوچا تب آپ لوگوں نے زلیخا سے میری شادی طے کرنے کا کہا۔ تب میں نے اپنے یک طرفہ محبت کو اپنے دل میں دبا کر آپ لوگوں کی عزت کی خاطر زلیخا سے شادی کر لی۔ اب جب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں کیوں خاموش رہ کر اپنی زندگی برباد کرتا؟ بھائی، میں نے جا کر صنوبر سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جب وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مرتضی خان، مجتبیٰ اور ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان کی فرما برداری نے آج اسے یہ صلا دیا تھا کہ آج وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا، اور اس کے دونوں بھائی خوش ہونے کی بجائے اس کی فرما برداری کو بھول کر اس سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، نکاح کیا ہے میں نے، تو آپ لوگ مجھے اس نفرت بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کیا میں خوش نہیں رہ سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتا ہوں؟ بھائی، آپ لوگوں کے فیصلے نے دیکھا کیا رنگ دکھایا۔ آج زلیخا کہاں ہے اور بھابھی، ان کو دیکھیے، کیا وہ خوش ہیں آپ کے ساتھ؟ بھائی، آپ لوگوں کے فیصلوں نے صرف اس گھر کے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے، خوشیاں نہیں دی۔ میں بھی زلیخا کے ساتھ صرف خوش رہنے کا ڈرامہ کرتا تھا، اب جب وہ نہیں ہے میری زندگی میں تو میں کیوں ساری زندگی اپنی محبت صنوبر سے چھپا کر یہ زندگی اکیلا گزارتا؟ مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے جا کر اپنے دلی جذبات سے اسے آگاہ کر دیا۔ مجھے پتا ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، لیکن میں ان کے ساتھ ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ انہیں اپنی شفقت کے سائے میں پرورش دوں گا اور صنوبر بھی ان کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی، کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی طرف بڑھنے لگے جو اس کے سامنے ان کی دونوں بھابھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ مجتبیٰ خان نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے سجل کو وہاں سے لے جانے لگی جو اس کی گود میں تھی، جبکہ حیدر خان ارتضیٰ خان کی بیوی کے پاس کھڑا اپنے باپ کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ارتضیٰ خان کی بیوی کو اشارہ کرنے پر وہ اسے وہاں سے پکڑ کر لے گئی، مگر وہ زور زور سے روتے مرتضیٰ خان کو پکارنے لگا، نو ڈیڈ، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ 11 سالہ بچہ روتا ہوا اپنی چاچی کی گریب سے نکلنے کی کوشش کرتے بولا، مجتبیٰ خان، ارتضیٰ خان، یہ تم دونوں ظلم کر رہے ہو، جانے دو اس بات کو، اور خوش رہنا اس کا بھی حق ہے۔ تم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں برباد کر ہی دی ہیں، ساتھ میں ان بچیوں کی بھی، مگر میرے مرتضیٰ کو تو آباد ہونے دو۔ کیوں ہر وقت تم لوگ مرتضیٰ اور مصطفیٰ پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہو؟ ہاں، انہیں بھی حق ہے پرسکون زندگی گزارنے کا۔ داجی شدید غصے سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں بیٹوں سے بولے جو غصے سے مرتضیٰ خان کو ہی گھور رہے تھے، بابا آپ درمیان میں نہ آئیں، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے۔ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے کہا، قاسم خان، قاسم خان۔ مجتبیٰ خان اپنے ملازم کو زور زور سے آوازیں دینے لگا تو وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا، نظریں ادب سے جھکا کر اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرنے لگا، قاسم خان، قاسم خان۔ مجتبیٰ خان اپنے ملازم کو زور زور سے آوازیں دینے لگا تو وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا اور نظریں نیچے جھکا کر اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرنے لگا، قاسم خان، دھکے دے کر اس باغی کو ہمارے گھر سے نکال دو، اور اگر اس کا ساتھ کسی نے دیا تو اسے بھی اس گھر سے باہر نکال دینا۔ مجتبیٰ خان کے حکم پر قاسم خان آگے بڑھا اور مرتضیٰ خان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا، جبکہ وہ ساکت نظروں سے اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگا جو سنگ دل بنے کھڑے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑو۔ داجی نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا تو قاسم خان کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا ہاتھ نکالتے ہوئے وہ بولے تو قاسم خان نے انہیں دور ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ قاسم خان کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ بولے،
तो कासिम खान ने उन्हें दूर करने के लिए अपने दूसरे हाथ से उन्हें पीछे हटाना चाहा तो वो पीछे हटने के बजाय ज़मीन पर जा गिरे। ये मंजर देख मुर्तज़ा खान ने शदीद गुस्से से कासिम खान को दूर धकेला और खुद अपने बाप की तरफ भागा, जो नीचे गिरे अपने दोनों बेटों को देख रहे थे। मुझे पता है सरदार मुश्तबा खान, सरदार इर्तज़ा खान, ये आलीशान घर और कारोबार तुम दोनों की मेहनत और पैसों की वजह से आज खड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना गिर जाओ कि अपने बाप को अपने मुलाजिम के हाथों बेइज्जत कर दो। मुर्तज़ा खान ने सख्त तेवरियां चढ़ाकर अपने दोनों भाइयों को आज पहली बार इतने गुस्से और नफरत से देखा। मुर्तज़ा खान ने सख्त तेवरियां चढ़ाकर अपने दोनों भाइयों को आज पहली बार इतने गुस्से और नफरत से देखा। हैदर खान जो अब मुस्तफ़ा खान का हाथ पकड़े खड़ा था, अपने बाप को अपने भाइयों पर चीखते देखा तो वो 11 साला बच्चा उन दोनों बड़े चचाओं को सख्त नफरत से घूरने लगा, जो उसके सामने ही खड़े थे। कासिम खान, मुंह क्यों देख रहे हो, निकालो इसे बाहर। मुश्तबा खान ने गुस्से से कासिम खान को कहा। जी खान जी। कासिम खान ने आगे बढ़कर मुर्तज़ा खान को कंधों से पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा, जबकि अपने बाप को उस घर से निकालते हुए देख सरदार हैदर खान अपने चाचू की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता डैड डैड कहता रह गया, मगर वो जालिम लोगों ने आखिरकार उसके बाप को और उससे और उसकी सात माँ की बहन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब वो जवान हो गया है, लेकिन आज भी वो अपने डैड के लिए उसी तरह तड़पता था जिस तरह 11 साल की उम्र में तड़पा था। और वो 20 साल की उम्र में जब फौज में चला गया तब उसने उन लोगों को छोड़ दिया तो वो अपनी बहन को भी ले जाना चाहता था, लेकिन मुश्तबा खान उसकी बहन को आज तक बेवकूफ़ बना रहे थे, उसके बाप बनकर, जबकि उस मासूम को ये तक पता न था कि वो जिसे अपना और उसका बाप समझती है असल में वही उसके सगे बाप के दुश्मन है। मगर आज उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से अपनी बहन और दादी को लेकर जाएगा और बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहने देगा। वो उन्हें यहाँ से अपने अपार्टमेंट में ले जाएगा। बहुत कर लिया इन लोगों ने अपनी मनमानियों को, अब वो खुद पर और अपनी मासूम नटखट बहन के साथ साथ अपने दादी पर उनके जुल्म नहीं होने देगा मजीद। वो बहुत जल्द अपने डैड को ढूंढकर अपनी बहन और दादी से मिलवाने उन्हें लेकर जाएगा, मगर उसे क्या पता था कि उनकी किस्मत में खुशियाँ नहीं बल्कि गम ही गम लिखे थे। खान खान रुक जाएं प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लें, खुदारा मुझसे शादी कर लो, वो वरना मैं मर जाऊंगी। वो लहंगा पकड़े तेजी से उसके पीछे भाग रही थी। हैदर खान गुस्से से आगे बढ़ रहा था, एकदम से पीछे मुड़ा और उसकी नज़रों में अपनी सुर्ख आंखों को गाड़ कर नफरत से बोला, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मोहब्बत करो। हाँ, जब मुझे पता चला कि इस घर का बड़ा बेटा मुश्तबा खान फिर से किसी पर अपना फैसला थोपने वाला है और वो कोई और नहीं मैं हूँ, तब मुझे ये पता चला तो बहुत गुस्सा आया। मैंने सीधा जाकर उन्हें साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं सरदार मुर्तज़ा खान नहीं हूँ, मैं सरदार हैदर खान हूँ जो अपने फैसले खुद करता है, किसी को अपने फैसले करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। उन पर तो उन्होंने हमेशा अपना फैसला थोपा, लेकिन मैं अपने ऊपर उन्हें ये हरगिज़ नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं अपने मामलों का बादशाह भी खुद हूँ और ग़ुलाम भी। वो उसे अपनी तरफ आते देख सब गुस्से से बोला। उर्वा खान आंखों में आंसू लिए मायों के लिबास में मलबूस उसे बेबसी से देख रही थी। तभी उसके दिमाग में फातिमा का नाम जगमगाया तो शदीद नफरत से बोली, खान आप ये सब उस नापाक लड़की। वो उसकी जानिब देख रहा था। जब उसके मुंह से लफ्ज नापाक सुना तो गुस्से से पागल होकर एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उसके मुंह से लफ्ज नापाक सुनकर वो पागल होकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार गया। वो ये वार सह न सकी और सीधी नीचे जा गिरी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे नापाक मत कहना, अब तुम जिंदा नहीं बचोगी मेरे हाथ से, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुमने मोहब्बत को मजाक समझ कर रखा है, समझती क्यों नहीं हो तुम, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम मेरी। वो आगे बढ़ा और उसे गर्दन से दबोच गुर्राते हुए बोला। उर्वा खान अपनी गर्दन पर सख्त गिरफ्त की वजह से बुरी तरह मचलने लगी। खान मुझे छोड़ दो। वो हकलाते हुए आंखों में तकलीफ के बाइस आते आंसू लिए उसे देखते हुए बोली, जो गुस्से से उसकी गर्दन सख्ती से दबोचे नफरत से उसे देख रहा था। मोहब्बत उसे कहते हैं जो मुझे फातिमा शाह से हुई है, और इस बात का इदराक मुझे तब हुआ जब मैंने उसे अस्पताल के रूम में बिस्तर पर पड़े रोते हुए देखा। उसकी सियाह आंखों में नमी देख यहाँ मेरे दिल में तकलीफ उठी।
उठी, और जब मुझे उस पर हुए जुल्म का पता चला तो मुझे हर उस शख्स से नफरत महसूस होने लगी जिसकी वजह से वो बर्बाद हुई, जिसने उसे बर्बाद किया था। डॉक्टर उर्वा खान, उन लोगों में तुम भी शामिल हो। तुमने उसे इतनी बातें सुनाई उस रात। बोलो, क्यों किया था तुमने ऐसा? हाँ, जवाब दो। वो जनूनी बना उसकी गर्दन पर सख्ती बढ़ाते हुए सर्द लहजे में पूछने लगा। उर्वा खान अपने हाथ उसके मजबूत हाथ पर रख के खुद को छुड़ाने की तगोदो कर रही थी। शेर, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, मर जाएगी वो। मुस्तफ़ा खान ने आगे बढ़कर उसे रोका, मगर वो नफरत की आग में ऐसे जल रहा था कि कैसे रुकता। शेर, हमें सरदार लाला का पता चल गया है कि वो कहाँ है, और मैंने सुना है उनकी एक बेटी भी है। शेर, तुम दो प्यारी सी बहनों के इकलौते भाई हो। जाओ जल्दी से हमारे भाई और अपनी बहन को लेकर आओ मेरे शेर। यह सुनकर हैदर खान का गुस्सा झट से भागा। सब आंखों में उर्वा खान की नफरत खत्म होते ही अपने बाबा की मोहब्बत की चमक तमतमाने लगी। तुम मेरे पास कैसे पहुंचे? तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? डैम इट, मैंने इतनी मेहनत से ये जाल बिछाया, और तुम कैसे चौकन्ना आओगे मिस्टर दो नंबरी? वो अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसों को महसूस करती तेजी से अपने हाथ, जो कब से उसने मुकाबिल को चकमा देने के लिए पीछे किए हुए थे, गुस्से से अपने हाथ आगे करती। वो तेजी से अपनी आंखों पर जो पट्टी उस शख्स को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ देर पहले बांधी थी उतार कर नफरत से मुकाबिल को देखते शख्स शॉक कर गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई और नहीं, आलमदाद झुका था, जो उसको प्यार भरी नजरों से देख रहा था। एकदम से उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया, और गुस्से में आकर उसने उसे पीछे धक्का देते कहा, बीवी, हम इन चीज़ों से इतनी जल्दी ये जहां नहीं छोड़कर जाने वाले, तो अपनी एनर्जी इन बच्चों वाली चीज़ों पर ख़त्म कर दो, बल्कि अपने मियाँ पर खर्च करो। सामने उसको ताड़ कर देखते वो संजीदगी से कहता। उसको तार उठाकर छूने ही वाला था कि माँ महर घबरा कर तेजी से उठी और जोर से धक्का देकर उस तार से उसे दूर कर गई, जबकि वो इस अचानक हमले पर संभल ना सका, और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी, और उसके साथ वो उसके ऊपर जा गिरी। डैम इट, क्या मरने का इतना शौक है तुम्हें, जो मौत को छू रहे हो अपने इन गंदे हाथों से? वो उस पर झुकी सख्त नजरों से उसे घूरते हुए बोली, तो आलमदाद उसके चेहरे पर फिक्र देख तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। हैरत है, कभी मारने का प्लान बनाती और कभी बचाने का। बीवी, तुम हो क्या चीज़? वो उसकी आंखों में देखते हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाते गंभीर लहजे में बोला, तुम्हें नहीं, उस घटिया इंसान का सोचकर मैंने ये प्लान बनाया था जिसने मुझे अगवा किया। तुम जैसे ठरकी को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करने वाली। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, बात तो एक ही है जानम, वो किडनैपर तो हम निकले ना। वैसे इतनी होशियार लड़की को कैसे पता नहीं चला जब हम उसे उठाने के लिए उसके डैड के ऑफिस के बाहर आए? वो कल शाम को सोचने लगा जब उसने उसके डैड के ऑफिस के बाहर से उसे उठाया। बहुत जल गया था वो उसे किसी और के साथ देखकर, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, तो गुस्से में आकर उसने ये सब किया। कैसे पता चलता मुझे? आखिर को ये घटिया काम एक बेशरम इंसान ने जो किया था। वो शदीद गुस्से से कल शाम को याद करने लगी जब वो अपने डैड के कहने पर उनके ऑफिस से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए निकली थी। तब जब वो शाम के 6 बजे मीटिंग से फारिग हुई तो ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार की जानिब बढ़ ही रही थी, तभी अचानक से पीछे से किसी ने आकर उसके मुंह पर रुमाल रखा। पहले तो वो कुछ समझ ना पाई, फिर जोर जोर से हार पैच चलाने लगी, मगर मुकाबिल भी बहुत होशियार था। उसने पहले ही शायद सब प्लान कर रखा था, और जब उसे होश आया तो खुद को यहाँ देखकर उस बेगैरत इंसान को गालियाँ बकने लगी, फिर उस कमरे में से ही उसकी मौत की तैयारी करने लगी। मगर उसे क्या खबर थी कि उसे उठाने वाला ये खबीस होगा। क्यों उठाया तुमने मुझे मिस्टर लुमड़ी? सुर्ख आंखों से उसे घूरती वो पूछने लगी। बीवी, तुम्हें लगाम डालने के लिए। बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी ना कल उस भगोड़े से। तुम्हें पता है जब बीवी इस तरह करे तो शोहर को क्या करना चाहिए? वो एकदम से गुस्से में आकर उसे खुद से करीब करते संजीदगी से पूछने लगा कि क्या? माँ महर उसके अजीब तासुरात देखकर पहली बार उससे डरने लगी, जुबान लबों पर फेरती, अपने दिल को शिद्दत से धड़कते हुए महसूस करने लगी। अपने बच्चों की अम्मा। गहरी नज़र उसके सरापे पर डालते वो बोझल लहजे में बोला, और यकदम उसकी कलाई को सख्ती से जकड़ गया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम क्या घटियापन कर रहे हो जलील इंसान? वो उसकी गिरफ्त में मचलती हुई शिद्दत से चीखी। बीवी, तुम पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें गुस्सा दिलाने का हमें। अब हमारे गुस्से को बर्दाश्त भी करो। वो उसकी चीखों का गला दबाकर उस पर झुका। वो गुस्से से उसे गालियां देती रही, मगर उसके गुस्से को बढ़ाती रही।
तुम जैसे कमज़ोर ज़हनी मर्द सिर्फ यही कर सकते हैं, औरत के साथ ज़बरदस्ती करके। मगर मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम जैसे कमज़ोर ज़हनी मर्द ही सिर्फ यही कर सकते हैं, औरत के साथ ज़बरदस्ती करके। मगर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तुम जैसे मर्द को अच्छे से हैंडल करना जानती हूँ। वो गुस्से और नफ़रत से मिलते जुलते एहसास से उसे पीछे धकेल कर सर्द लहजे में बोली, क्या कहा लड़की, क्या कहा तुमने? हम तुम्हें एक ज़हनी मरीज़ लगते हैं। अभी बताते हैं तुम्हें कि हम कितने कमज़ोर हैं। आलमदाद सुर्ख आंखों से उसे देखते खूंखार लहजे में कहता दोबारा उसकी तरफ झुका, यही बात मुझे तुम जैसे मर्दों से नफरत करने पर मजबूर कर देती है कि जब कोई औरत तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाए तब बदले में तुम लोग उसे अपनी अना का मसला बनाकर उस औरत के साथ ज़बरदस्ती करके अपनी जूती की नोक पर रखने के बाद तुम लोग उस मजलूम औरत को दबाने के लिए उन पर अपना रोब जमाने को बड़े ही फगर से अपनी मर्दानगी कहते हो। इस बात को तो तुम जैसे मर्दों पर तरस आता है मुझे, उन औरतों पर जो तुम जैसे गीदड़नुमा मर्दों से डरती हैं। वो गुस्से से उसके सीने पर हाथ रखती उसे पीछे हटाकर नफरत से बोली। आलमदाद उसकी सख्त बातों से खुद को सरता पैर सुलगते महसूस करने लगा। लड़की, तुम अब मेरी तौहीन कर रही हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब हम तुम्हें तब छुएंगे जब तुम खुद हमारे पास आओगी मेरे कमरे में, मैं तब तुम्हें पूरे हक से अपनाऊंगा। वो उसे गुस्से से देखता चैलेंज करते कहने लगा। माँ महर उसकी तरफ तंजिया नज़रों से देखने लगी। मेरी बच्ची। अम्मा साईं फातिमा शाह को देखकर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी और उसे सीने से लगाते बोली, अम्मा साईं हमें माफ़ कर दें जो हमने आपके बारे में नहीं सोचा और इतना बड़ा कदम उठाया, हमें माफ़ कर दें दादा साईं। फातिमा शाह बुरी तरह से रोती हुई अचानक से अम्मा साईं और अब्बास शाह के सामने हाथ जोड़ते बोली, फातिमा बच्चे, इसमें आपकी नहीं हमारी गलती है। हमने एक गिद्ध को पाला, हमें माफ़ कर दें जो हमने आपको उस दिन अकेला यहाँ छोड़ दिया। अब्बास शाह ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी बात पर शहरयार बख्श शाह की माँ शर्मिंदगी के मारे नजरें चुराने लगी। वो भी तो उस रात यहाँ नहीं थी, लाहौर अपनी बहन के पास थी। अगर उन्हें पता चलता कि वो ऐसा करेगा तो उसी दिन उसे मार देती, मगर अफसोस वो यहाँ नहीं थी। अब उन्हें अपने आप से नफरत होने लगी कि उन्होंने लालच में आकर ये सब क्यों किया। बाबा साईं हमें माफ़ कर दें, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हमने आप सबसे ये राज न छुपाया होता कि अली निगार का बेटा है, हमारा और बख का नहीं, तो ये कभी ना होता, बल्कि वो दरिंदा भी नहीं बनता। अगर वो आज अपने असल माँ बाप के पास होता तो फातिमा के साथ ये सब ना होता। हमें माफ़ कर दें आप सब, ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो नीचे रोते हुए गिरकर सबसे माफ़ी मांगने लगी। अपनी बीवी की बात सुनकर शाह बख्श शॉक्ड रह गए और बाकी सब फटी आंखों से उन्हें देखने लगे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप शहरयार की माँ? बख्श शाह ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए पूछा तो वो अपनी जगह से उठी और उनके कंधे को पकड़कर रोते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं बख्त, ये अली निगार का बेटा है, हमारा बेटा नहीं। हमारी तो बेटी पैदा हुई थी उस वक्त जब हमने झूठ कहा था कि हमने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। हमें माफ़ कर दें। और फातिमा शाह हमारी वजह से बर्बाद हुई है ना, तो हम इसे अपने बेटे शहरयार की दुल्हन बनाएंगे, अगर आप इजाज़त देंगे बाबा साईं। कल जुमा है, कल ही इनका निकाह होगा। वो आंखों में नमी साफ करते सबको देखती ये फैसला शहरयार बख्श शाह से पूछे बगैर उसी लम्हे खड़े होकर उन्होंने किया था। शहरयार बख्श शाह तो साकित नज़रों से उन्हें देखने लगा। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप जानती तो हैं कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रहा हूँ। आप मुझ पर यह फैसला इस तरह नहीं थोप सकती। शहरयार बख्श शाह शदीद गुस्से से उनसे कहने लगा तो वो तो उनके फैसले पर ही आग बबूला हो रहा था, जबकि फातिमा शाह फटी आंखों से अपनी ताई को देख रही थी। शहरयार की माँ, जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हमारा बेटा इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो आप क्यों ये सब कहकर इस बच्ची को और दुख दे रही हैं जो पहले ही चोट खाए हुए है सिर्फ आपकी वजह से। मैं रोसा शाह वहीं खड़ी कब से ये सुन रही थी। तभी उसके जहन में ख्याल आया कि क्या कोई एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो बर्बाद हो चुकी है। वो फातिमा शाह के खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने लगी जो अपनी ताई की बात पर खामोशी से आंसू बहा रहा था। वो नज़रें उस पर से हटाकर दस्तगीर आलम शाह की जानिब देखने लगी जो आंखों में नमी लिए अब उसकी तरफ देख रहा था और उसकी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। महरू हवेली के किचन में खड़ी मुलाजमों को हिदायत दे रही थी कि क्या क्या बनाना है। कल ही शहरयार फातिमा शाह को लेकर आया था और उस वक्त सभी अम्मा साईं के कमरे में मौजूद थे। महरू, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ें इसे, ये खुद देख लेंगे, आप हमारे साथ चलिए। दस्तगीर आलम शाह उसे ढूंढते हुए किचन की जानिब पहुंचा तो अंदर उसे वजनी चीज़ें उठाते देख तेज़ी से आगे बढ़ा और वजनी पतीली एक मुलाजमा को पकड़ाकर उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाने लगा। शाह, आप क्या कर रहे हैं? अम्मा साईं के पास जाएं, वो
क्या सोचेंगी कि इस मुश्किल घड़ी में आप उनके पास होने की बजाय बीवी के पल्लू से लगकर बैठे हैं। महरू से रूम की जानिब कदम बढ़ाते देख सख्ती से बोली, अम्मा साईं के पास भी जाएंगे हम महरू, आपको रूम तक तो छोड़ें। हम देख रहे हैं कि आजकल आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, क्यों अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही आप? अगर आपको और हमारे बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, महरोसा जब से हवेली में आई थी कोई ना कोई काम करते हुए दस्तगीर आलम शाह को नजर आती। अब भी उसे किचन में देख उसे सब गुस्सा आ रहा था उस पर। अब वो उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाते हुए अच्छी खासी उसकी क्लास ले रहा था। शाह, हमें इस तरह हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारी एक्सरसाइज कैसे होगी? महरोसा ने रुक कर उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा। दस्तगीर शाह उसकी बात पर उसे देखने लगा जो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। महरू, बस हमने कह दिया आप बेड से नीचे पैर नहीं रखेंगी तो नहीं रखेंगी, और एक्सरसाइज की आप फिक्र मत करें, हम हैं ना, हम एक बहुत ही अच्छे जिम ट्रेनर है, हम आपको अच्छे से एक्सरसाइज करवा देंगे। वो उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ हाइल करता मायनी खेजी से बोला तो महरूसा शाह शर्म से सुर्ख होती उसके कंधे पर हल्के से चपत मारती उसे घूरने लगी। हम आपकी तरह बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे शाह जी, आप बिना। वो उसकी जानिब देख रहा था। उसकी बात पर उसे एक शरारत सूझी तो उसे बाजू में उठाकर रूम की जानिब बढ़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर उसे देखते इशारा करने लगा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्या शाहजी? उसे बार बार बेडरूम के दरवाजे की तरफ आंखों से इशारा करते देख वो अब उसे घूरते हुए बोली, हमारी भोली बेगम, हम कब से इशारों से आपसे दरवाजा खोलने का कह रहे हैं, देख नहीं रही अभी हमारे हाथ बहुत मसरूफ हैं। वो आंख दबाकर शरारत से बोला, उस्तानी जी, हम अपनी मासूम और भोली सी बीवी पर रहम नहीं सिर्फ मोहब्बत करते हैं, और वो भी शिद्दत वाली। वो शरारत से एक आंख दबाकर उसे कहने लगा तो महरूसा उसे धक्का देने लगी, लेकिन उस पहाड़ जैसे शख्स को खुद से दूर करना उस नाजुक लड़की का काम नहीं था। जब वो थक गई तो चेहरा दूसरी तरफ करती गुस्से से तेवरियां चढ़ाने लगी। अच्छा बाबा, हम जा रहे हैं, अब गुस्सा तो मत करें आप उस्तानी जी। उसे गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए और गहरी सांस लेते देख वो तेजी से पीछे हटा और बोला, अब जाएं भी ना, क्यों खड़े हैं आप? अम्मा साईं को इस वक्त अकेला मत छोड़ें। फातिमा के साथ जो हुआ है इस वक्त आपको उनके पास होना चाहिए, ना कि हमारे साथ। वो संजीदगी से बोली। उसे फातिमा शाह पर हुए जुल्म का सुनकर उस पर बहुत रहम आया था और हमदर्दी भी हुई थी कि कितनी प्यारी लड़की के साथ कैसा बड़ा सानेहा हो गया। वो तो चेहरे से भी बहुत मासूम लगती थी। महरू, आप सही कह रही हैं, हमें इस वक्त उनके पास होना चाहिए, मगर हम आपको भी तो अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी तबीयत भी तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और ये सब आपके काम करने और वज़न उठाने की वजह से हो रहा है। अगर आज हमने आपको पकड़ा ना होता ना तो आप हमारे साथ साथ, तो आप अपने साथ साथ बच्चे को भी खतरे में डाल लेती। वो उसे देखते हुए आखिर में सख्ती से उसे घूरने लगा जो सर झुका गई। वो सच ही तो कह रहा था, आजकल वो अपना ध्यान सही से बिल्कुल नहीं रखती थी। रखती भी कैसे? मगर वो भी कैसे रखती? यहाँ हर तरफ इतनी परेशानी ही परेशानी थी तो वो कैसे खुश रह सकती थी? शाहजी, आप फिक्र मत करें, अब आप जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। जब हम आपके सामने होंगे तो आपका ध्यान दो जगहों से नहीं भटकेगा। महरोसा ने उसे गले लगाते प्यार से कहा तो दस्तगीर शाह ने उसकी पुष्ट पर दोनों हाथ रखकर उसे मान बख्शा।